Assalamu alaikum. This is Rohma Javed, PP 1650187. The topic of my presentation is rational irrational uses and case study of fluoxetine. The agenda I would be covering in this presentation is as follow. First we'll discuss the rational use, then main side effects and interaction, drug-drug interaction, then the dosage and the mechanism of action, then discuss the drug toxicity, and then we'll discuss the alternatives of the fluoxetine, then we'll discuss pharmacoeconomics, irrational use, and in the last we will discuss the case study. Now let's start with our presentation. As we all know that fluoxetine is SSRI, that is selective serotonin reuptake inhibitor. It is an antidepressant, so it is used to treat the depression, panic attacks, obsessive compulsive disorder. It is also used in bulimia. It is a certain eating disorder, and it is also used in the premenstrual syndrome, that is the premenstrual dysphoric disorder. Now, what are the side effects of the fluoxetine? They are as follows: nervousness, anxiety, difficulty falling asleep, nausea, diarrhea, dry mouth, heartburn, and yawning. Fluoxetine also has several drug-drug interaction. The drugs with which it interacts are as follows: amino acids, L-dopa, L-tryptophan, anorexian, anticonvulsants. It may interact with certain other antidepressants, anxiolytics, calcium channel blockers, cyproheptadine, lithium salts, etc. The dosage in which it is administered, it is usually in between 20 to 80 milligram every 24 hourly, that is once daily, and it is given orally. The mechanism of action is very simple. As we all know that it is SSRI, so it will exert its effect by blocking the reuptake of the serotonin into the presynaptic serotonin neurons by blocking the reuptake transporter proteins located in the presynaptic terminal. Now we'll discuss the drug toxicity. But before proceeding towards the drug toxicity, I would like to clear that if a person do the overdosing by mistake or by chance, it has overdosed the fluoxetine, so it is not that too much harmful. Its toxicity is minimal. The toxicity which it causes, that is the tachycardia, drowsiness, tremor, nausea, and vomiting. Now we'll discuss about the alternatives of fluoxetine. That what are the alternatives? There are two alternatives of fluoxetine, that is the Cymbalta and Zoloft. But as compared to these two and other SSRI which we were previously using for the antidepressant, fluoxetine is more effective, more safe, well tolerable, lesser side effect it has. And secondly, it is cost effective as well. We already know the indications that for what purpose we are using the fluoxetine, Cymbalta and Zoloft. So we'll proceed toward the pricing. अगर हम pricing की बात की जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं easily कि जो है हमारे पास Cymbalta जो है it is more expensive, Zoloft is less expensive as compared to Cymbalta, but fluoxetine is very less expensive. It is cost effective. A normal person can easily afford it. Then we have the dosage form, in which dosage form fluoxetine is available. Fluoxetine is available in oral capsules, oral delayed release tablets, oral solutions, and oral tablet. That it is only available in the oral dosage forms. Secondly, then we have Cymbalta. Cymbalta is really available in the oral delayed release capsules, and Zoloft is available in oral concentrate and oral tablets. Brand name under which fluoxetine is marketed is the Prozac, Serafam, Selfemra, and then Cymbalta is marketed under the brand name of Dree, Zalma, Sprinkle, and Irena. Zoloft has no brand name. हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो फ्लूजेटाइन हैज़ द हाफ लाइफ ऑफ 210 आवर्स, किम्बाल्टा हैज़ द हाफ लाइफ ऑफ 17 आवर्स एंड ज़ोलॉफ्ट हैव हाफ लाइफ ऑफ 66 आवर्स. तो एज़ कम्पेयर टू हाफ लाइफ भी अगर हम देखा जाए तो फ्लूजेटाइन अपना जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है फ्लूजेटाइन अपने 210 आवर्स लेता है. ऑल्दो इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी मोस्ट इफेक्टिव है. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स. I will not read this text. I will just give you a journal idea that what is actually the pharmacoeconomic is. Pharmacoeconomic actually होता है क्या है, हमारे पास एक साइंटिफिक डिसिप्लिन होता है जो कंपेयर कर रहा होता है वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग को या फिर ड्रग थेरेपी को टू अनदर. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल हम लोग डिस्कस करें तो हमारा दोनों चीज़ें एक ही कंडीशन में यूज़ की जा रही होती हैं और अब फिर हम उनको आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, इट इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ द हेल्थ इकोनॉमिक्स. फार्मा इकोनॉमिक स्टडीज़ जो होती हैं वो सर्व कर रही होती हैं टू गाइड द ऑप्टिमल हेल्थ
care resource allocation in the standardized and scientifically grounded manner. तो हमने यहाँ पर जो फार्माकोइकोनॉमिक फ्लूजिटाइन की करी है, हमने किससे कंपेयर की? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन से कंपेयर करी, क्योंकि प्रीवियसली लोग जो होते थे जब भी डिप्रेशन का शिकार होते थे तो जो क्या कहते हैं कंसल्टेंट जो हमारे फिजिशियन होते थे, मोस्टली जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं फर्स्टली हमें क्या प्रिस्क्राइब कर? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन प्रीवियसली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होते थे और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता था। लेकिन फ्लूजिटाइन की इफेक्टिवनेस और उसकी वेल टॉलरेबिलिटी और उसके लेसर साइड इफेक्ट्स की वजह से अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, अब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने लग गए हैं और ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है मोस्टली इन द डिप्रेशन दैट इज प्रेजेंट इन द एल्डोलेसेंस इन द यंगर एज ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमारे पास हमने जब फार्माकोइकोनॉमिक स्टडी करी तो उनके बेसिस पे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि फ्लूजिटाइन जो है हमारे पास वेल एस्टेब्लिश एंटी डिप्रेशन है विच पोजेसेस द टॉलरेबिलिटी एंड सेफ्टी एडवांटेज ओवर द ट्राईसाइक्लिक एजेंट्स। द अवेलेबल कॉस्ट एनालिसिस शोज दैट दीज बेनिफिट्स कैन बी obtained without additional overall cost to the healthcare provider. Cost advantages observed to date for fluzitine over other SSRIs require information. Now we'll discuss about the irrational use of fluzitine. ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम एक ड्रग है या कोई भी चीज़ होगी, अगर हम उसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए यूज़फुल है, और अगर हम उसका एब्यूज़ करना इस्तेमाल कर देंगे, जिस डोज में या जिस अमाउंट में हमें उसको इस्तेमाल करनी चाहिए उसमें उससे ज़्यादा करेंगे या फिर उसका एब्यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी देगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर इरेशनल यूज़ में आ जाती हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2-3 पॉइंट डिस्कस किए हैं इरेशनल यूज़ के। पहला तो ये कि जो प्रिस्क्राइब डोज है वो नहीं ले रहे, उससे ज़्यादा ले रहे, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास आहिस्ता चल के किसकी तरफ चला जाएगा? ड्रग एब्यूज़ की तरफ चला जाएगा। पेशेंट यूफोरिया का शिकार हो जाएगा, उसको प्लेजर फील होगा। अब जो उसकी प्रिस्क्राइब डोज थी वो उसको इफेक्ट नहीं करेगी, उसकी डिजीज़ कंडीशन को उस पर इफेक्टिव होगी ही नहीं, क्योंकि उसको अब डबल डोज लेने की आदत हो गई है, ट्रिपल डोज लेने की आदत हो गई है। तो बिसाइड क्या कि वो ड्रग उस कंडीशन को ट्रीट करे, उस कंडीशन को मज़ीद वर्सन कर देगी। फिर उसके बाद हमारे पास कि लॉन्ग, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं हमारे पास हाँ, कि जो एक ज़रूरी नहीं है कि ड्रग ऑफ यूज़ जो पेशेंट होंगे वो सिर्फ फ्लूजिटाइन का कर रहे हो सकता है वो कॉम्बिनेशन में कर रहे हो, तो ये डिफरेंट साइड का क्राइटेरियाज होते हैं, सबको हमें देखना पड़ता है। जो एंटी डिप्रेशंस होता है उनका ड्रग एब्यूज़ बहुत जल्दी करने लग जाते हैं पेशेंट्स। सेकेंडली हमारे पास ये कि हम सबको पता है कि एंटी डिप्रेशंस जब भी हम लेते हैं तो इनका एक टाइम कोर्स पीरियड होता है जिसके अंदर कि 6 मंथ का है, 8 मंथ्स का है, 1 ईयर का है या 6 ईयर्स का, जो भी है, तो हमने उसको प्रॉपरली फॉलो करना होता है। लेकिन अगर हम अपनी डोजेस को मिस करना शुरू कर देंगे तो जो हमारी डिजीज़ कंडीशन 0 से स्टार्ट होगा, अगर 10 तक रिकवरी हमारी 10 तक हुई है और अभी 90% बाकी है, लेकिन हमने डोजेस मिस करना शुरू कर दी तो रिलैप्स ऑफ द डिजीज़ हमारे पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप 10 पर पहुँच के दोबारा से 0 पे आ जाओ, तो इसलिए हम लोग को इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। थर्डली हमारे पास ये होगा कि अगर हम कोई भी ड्रग, सिर्फ एंटी डिप्रेशन नहीं, कोई भी ड्रग हम एकदम नहीं छोड़ सकते। हर एक ड्रग का अगर हमने इसको स्टार्ट किया तो उसका एक एंड पॉइंट है, उसको कितने टाइम में ख़त्म करना है और किस तरह से ख़त्म करना है। तो अगर हमने फ्लूजिटाइन को एब्रप्टली स्टॉप कर दिया तो ऑब्वियसली बात है विड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे, और वो सिम्टम्स क्या होंगे? इरिटेबिलिटी होगी, नोजिया होगा, डिजीनेस होगा, वॉमिटिंग होगी, नाइटमेयर्स होंगे, हेडेक होगा और पैरेस्थीसिया हो जाएगा, यानी कि प्रिकलिंग टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन में अजीब सी चुभन, सुनसनाहट सी महसूस होना शुरू हो जाएगी। That was all about the fluzitine as a drug. Now we'll discuss about the case study. The case study is a 17-year-old male with a 1-month history of major depressive disorder presented to ED with ataxia, slurred speech, and myoclonic jerking movements. Approximately 3 weeks prior to presentation, he was admitted to an outside hospital for suicidal ideation. The patient reported generalized weakness, dizziness, lethargy, and difficulty walking. He also reported nausea unaccompanied by vomiting. He saw his primary care physician for these symptoms and was prescribed ondansetron to use as need for nausea. The patient's symptoms continues and he took 2 4 milligram doses of ondansetron 2 days prior to presentation and a third 4 milligram dose the morning of admission in addition to his fluzitine dose. It's mean कि fluzitine वो पहले से यूज़ कर रहा था, उसकी जब कंडीशन वर्सन हुई तो उसने क्या किया? ondansetron लिया। डॉक्टर ने कहा था कि एज नीडेड फॉर द नोजिया, जब नोजिया तब लो, लेकिन फिर उसने जब उसकी कंडीशन सिम्टम्स उसके कंटिन्यूड रहे, उसने क्या करा? 2 डोजेस 4 मिलीग्राम की ondansetron की ले ली। फिर उसके बाद तीसरे दिन भी इसको सही नहीं हो तो उसने 4 मिलीग्राम डोज ले ली।
ठीक है। एट दिस पॉइंट जो पेशेंट की मदर थी उसने नोटिस किया उसके बेटे की जो कंडीशन है मज़ीद वर्सेंड हो रही है। सो शी स्टेटेड कि जब उसकी वर्सेंड हुई तो उसकी जो आइज़ थी दे वर रोलिंग अराउंड इन हिज हेड एंड ही वाज हैविंग डिफिकल्टी स्पीकिंग एंड वॉकिंग। ही हैड एन एपिसोड ऑफ ब्रीफ अनकॉन्शियसनेस दैट शी डिस्क्राइब्ड एज फेंटिंग। ही ऑल्सो हैड फ्रीक्वेंट ट्विचिंग एंड जर्किंग विद अनयूजुअल पोजिशन ऑफ हिज हेड एंड feet. So the subject in this is okay, we have a 17-year-old male means it is a younger adolescent with a 1 month history of major depressive disorder presented to the ED with ataxia, slurred speech and myoclonic jerking movement. Before proceeding towards the case history, I would like to inform you here that FDA has approved fluoxetine as the most effective drug along with the CBT therapy यानी कि behavioral therapy जो हम देते हैं in the adolescents, in the younger age patient that are suffering from the major depressive disorders or the depressions, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा effective है as compared to other antidepressants. ठीक है। वाइटल साइन एंड सिम्टम्स जो हमने ऑब्जर्व किए उसके वहाँ पर वो क्या था, वीकनेस थी, डिजीनेस थी, लेथार्जी थी, डिफ़िकल्टी वॉकिंग था, नोजिया था, लेकिन वॉमिटिंग नहीं थी। माइक्लोनिक जर्किंग, स्लर्ड स्पीच, अटैक्सिया, ये सब हमारे पास था। हिस्ट्री क्या है ये अब पहले बता चुके हैं, उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की हिस्ट्री है। सेकेंडली उसका रैपिड मेटाबोलाइजर ऑफ द सर्टन साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो कि इन्वॉल्व है हमारे पास कैटाबॉलिक पाथवे ऑफ मेनी ड्रग्स इंक्लूडिंग दी फ्लूजेटाइन। इसके बाद हमने जो डायग्नोसिस किया उसकी सारी कंडीशन को देखकर तो हमने डायग्नोस किया कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द सेरोटोनिन सिंड्रोम एंड ही वॉज एडमिटेड टू PICU। ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर्स ने क्या रखा कि पहले तो इनिशियली उसको स्टार्ट किया एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जब जैसे ही डायग्नोस किया तो उसको फ़ौरन से स्टार्ट कर दिया 10 मिलीग्राम पर डे डोज ऑफ दी फ्लूजेटाइन वंस डेली। ठीक है। फिर उसके बाद ईडी के अंदर जब उसका पहला दिन था तो उसको स्टार्ट किया गया 1 टाइम डोजेस ऑफ लोरासिपाम 1 मिलीग्राम एंड सिप्रोहेप्टाडीन 12 मिलीग्राम विद रिलीव ऑफ सिम्टम्स। फिर जब उसको PICU में एडमिट हुआ, डायग्नोस हुआ, सेरोटोनिन सिंड्रोम हुआ, तो फिर उसको दोबारा कंटिन्यू ही रखा 1 मिलीग्राम लोरासिपाम पे, लेकिन जो हमारे पास सिप्रोहेप्टाडीन थी उसकी डोज को कम करके 8 मिलीग्राम कर दिया 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स डेली कर दिया। फिर उसके बाद पेशेंट एनिडोनिया, डिप्रेस मूड रहने लगा, पेशेंट का स्लीप बहुत होने लगी, एपिटाइट की डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन उसकी जो कि सुसाइडल आइडिएशन थे वो कम हो गए। तो फिर हमने मिर्टाजिपाइन स्टार्ट करी 7.5 मिलीग्राम नाइट, रात में देना शुरू करी। फिर उसके बाद पेशेंट को जैसे कि पेन हो रहा है या उसके रिलीफ के अंदर रिलीफ ऑफ द पेन के लिए वेरियस ओकेशंस के ऊपर हमने 2 ड्रग्स का इस्तेमाल और किया। वो क्या थे हमारे पास, नेप्रोक्सन 250 मिलीग्राम ट्वाइस डेली जब भी हमें नीड हुई, और कीटोलैक 30 मिलीग्राम जब भी हमें नीड हुई। इन सब के बाद जो हमने पेशेंट की ऑब्जर्वेशन देखी वो क्या देखी, पेशेंट के जो वाइटल साइंस थे वो रिमेन स्टेबल रहा, उसको हाइपरदर्मिया नहीं हुआ, पेशेंट कंटिन्यू टू हैव द इक्वेशनल ट्विचिंग वगैरह उसको होती रही, लेकिन और मजीद कोई सिम्टम्स निकल कर नहीं आए। फिर उसके बाद हमारे पास जो उसको एनिडोनिया, डिप्रेस मूड और स्लीप एपिटाइट डिस्टर्बेंस हो रही थी उसके लिए तो हमने मिटाजिपिन स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं हमने ये देखा कि पेशेंट ने स्टेबली स्टेप डाउन किया फ्लोर के ऊपर स्टेबल कंडीशन के अंदर, और फिर डे 3 के अंदर पेशेंट ने कंटिन्यू किया, इंप्रूव किया अपने सिम्टम्स में, और उसको फर्दर कोई जर्किंग नहीं हुई, ट्विचिंग नहीं हुई। और डे 4 और 5 के ऊपर पेशेंट के अंदर बायलेटरल फ्लॉन्टेड हेडेक हुआ था, जिसकी वजह से उसको रोशनी और आवाज़ दोनों ही उसको बहुत इरिटेट कर रहे थे, यानी कि सेंसिटिविटी हो रही थी। लेकिन जब हम न्यूरोलॉजिस्ट स्टाफ से हमने कंसल्ट किया तो पता चला कि ये लाइटली कनेक्टेड है टू हिज साइकियाट्रिक प्रेजेंटेशन। तो फिर ओवरऑल हमने कंक्लूजन क्या किया कि जो उसका हेडेक था वो इवेंचुअली सबसाइड हो गया, उसके सिम्टम्स फर्दर रिजॉल्व हो गए और अब वो मजीद स्टेबल कंडीशन में आ गया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एट द डे 6 ही वॉज डिस्चार्ज होम फ्रॉम द हॉस्पिटल। That was all for my presentation. Thank you.